So now we are moving towards network theory, the subject, and that is under GATE syllabus, network theory, and it consists of, you know, DC theorem, DC network theorem, DC circuits, as well as AC circuits. So we have to go through all these things in this topic, you can say, network theory, right? So first I would like to take the example of, you know, mesh analysis. As you have already gone through this mesh analysis in your first year and second year of BTech. It's very simple, but here we will try to discuss or take a brief look of or brief view of this mesh analysis and nodal analysis. And the main theme of today's class is to deal with dependent sources. So dependent sources is our main target today. So let us start with, you know, mesh analysis. So mesh analysis, what we have to do, we will be given by this, you know, this is E1, a source, R1, R2, R3, E2, R4, R5. That's all. So here there are three meshes: mesh 1, mesh 1, mesh 2, and mesh 3. We have got three mesh: 1, 2, and 3. What we do, the difference between mesh analysis and loop analysis, I am telling you, in loop analysis we apply KVL as well as KCL. But here in this case, in this mesh analysis, we don't apply KCL, we only apply KVL, and we write KVL in all the meshes, right? So mesh 1, mesh 2, and mesh 3, in all the three meshes we try to write down the KVL equations only, right? But there will be an assumption, and the assumption is that, for example, in mesh 1 we are writing KVL, so this mesh 1 current will be dominating in nature in comparison to other two meshes. For example, you are writing KVL for mesh 2, it means mesh 2 current will be dominating in nature in comparison to I1 and I3. For example, we are writing here mesh 3, KVL in mesh 3, so I3 current will be dominating in nature in comparison to I2 and I3. This we have to keep in mind and nothing else. Second thing, so you are independent to assume the direction of I1 and I2 and I3. You can take any direction of I1, I2, I3. If you want to take in this way I1, I2 and I3, you may go for it, nothing, not an issue. If you want to take this as I1, this as I2, and here it is I3, no problem, you can take it. So as far as selection of current, jitne meshes honge, the number of meshes is equal to number of mesh current. For example, 3 meshes, 3 current, 2 meshes, 2 current, 4 meshes, 4 current. So जितने भी करंट, जितने meshes होंगे उतने आप करंट आप अज्यूम कर सकते हैं, करंट की कोई भी डायरेक्शन आप अज्यूम कर सकते हैं. बस एक ही बात आपको याद रखनी है कि जिस भी मेश में आप KVL लिखेंगे, that mesh current will be dominating in nature, right? So we start with here, let I1, I2 and I3 are the mesh currents in mesh 1, 2 and 3 respectively. ये मैंने बता दिया आपको, जो भी आपका मन करे, जो डायरेक्शन आपको अज्यूम करना है, you can assume that direction. Now, second thing you have to keep in mind, this is your thing you have to keep in mind. While applying KVL in
any mesh the concerned mesh current will be dominating in nature and we have to follow its direction for this mesh इस mesh के लिए हमें इस करंट की जो डोमिनेटिंग करंट है उसकी डायरेक्शन को आपको मानना पड़ेगा. So there are few things. Now in very short time I am writing KVL over here and it will be simplest way. So this is your R4. Fine, write down. आप लोगों को पहले भी पता होगा और अगर नहीं पता होगा तो हमारे पुराने वाले लेक्चर्स जो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा. प्लेलिस्ट में आपको केवीएल केसीएल के लेक्चर्स पड़े हुए हैं. वहाँ पे मैंने बाकायदा साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है. आप उस साइन कन्वेंशन को फॉलो कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप यू कैन गो थ्रू इट ओके इन केवीएल केसीएल सेक्शन. So the current entering point is taken as positive and exit point is negative. So this is positive negative for I2. Now यहाँ पर यही बात हमें याद रखनी है. बट क्या होगा कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेश 1 के लिए ये करंट डोमिनेटिंग होगा और मेश 2 के लिए करंट डोमिनेटिंग होगा, तो इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी. सो अब हम देखिए कैसे लिखते हैं. सो बाय केवीएल इन मेश 1 की बात करते हैं, वी गेट. अब आइए यहां पर देखिए, जैसे हम यहां से चले सो करंट हमारा इस पॉइंट पे I1 एंटर करेगा तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव I1 R1. जब आप यहां पर आइएगा, इस केवीएल में आपको लिखना है, इस मेश में जब आप यहां पर आइएगा तो ये R2 ब्रांच है आपकी. इस R2 ब्रांच में दो करंट आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. अब क्वेश्चन आते हैं कि आप इसकी डायरेक्शन लीजिएगा या इसकी डायरेक्शन लीजिएगा. आप मेश 1 में केवीएल लिख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको इसकी डायरेक्शन लेनी है I1 की. तो I1 की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव I1 माइनस I2 एंड R2. नाउ यू आर कमिंग टू दिस EMF सोर्स, so this is E1 is equal to 0. This is equation number 1. Now by KVL in mesh 2 we get. मेश 2 में हम क्या करेंगे, सो मेश 2 में आ जाएंगे. अब हमारा ये डोमिनेटिंग नेचर होगा, यानी कि इसकी करंट की नेचर को डोमिनेटिंग लेना है. अब इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा. आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्या लिखिएगा, पॉजिटिव I2 R3. ये आपका वोल्टेज सोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आइए यहाँ पर आइए, इस पर सिर्फ आपका यही I2 करंट जाएगा. यहाँ भी आप बच गए. ठीक, अब आप यहाँ आइए. जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर I1 और I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट फर्स्ट इक्वेशन में I1 डोमिनेटिंग था, सेकेंड इक्वेशन में I2 डोमिनेटिंग है. I2 की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ. तो आपका I1 माइनस I2 की डायरेक्शन क्या होगी, I2 माइनस I1 की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगी. I1 माइनस I2 की डायरेक्शन क्या थी, I1 माइनस I2 की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ थी. अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. Similarly, by KVL in mesh 3 we get. क्या करेंगे भाई, यहाँ आइए, यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं है. आप लिख सकते हैं प्लस I3 R5 माइनस E2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर. अब आप क्या करेंगे, सॉल्विंग 1, 2 एंड 3 वी कैन गेट I1, I2 एंड I3. अब आप कैलकुलेटर से इसको अरेंज करके आप I1, I2, I3 क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें कोई बात नहीं है. ठीक है, आसानी से आप इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. देयर इज नॉट एन इश्यू. फाइन. अब हम आते हैं यहाँ पर एक और आपको टर्म मिलेगा एंड दैट टर्म इज सुपर मेश.
सो अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पर सुपर मेश की कंडीशन आएगी, यानी कि सुपर मेश आपका एक वो कंडीशन होगा बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सुपर मेश। यानी कि सुपर मेश तब फॉर्म होगी जब आपका किसी भी मेश में, तो आपके कितने मेश हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, किसी भी मेश में अगर करंट सोर्स मौजूद होगा दैट विल फॉर्म सुपर मेश। और ये आपकी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए होता है, न कि आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए होता है। इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखिए कैसे आसान होगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अपनी मर्जी से, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस सेक्शन में बताया कि आपको अपनी मर्जी से करंट अज्यूम करना है, आप अपनी मर्जी से करंट अज्यूम कर लो। आप ए ले लो मेश करंट, बी ले लो और ये आपका सी ले लो, आई सी, है ना। आप लिखेंगे लेट आई ए, आई बी, आई सी आर द मेश करंट्स in 1 and 2, 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपके मेश करंट आ गए। अब आपको एक चीज़ वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा, बट फिर भी मैं बता दूं कि जिस भी लूप में, जिस भी क्लोज पाथ में आपके पास, जिस भी क्लोज पाथ में करंट सोर्स मौजूद होगा, यू कैन नॉट अप्लाई केवीएल इन दैट ब्रांच। आप वहाँ पर केवीएल नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप केसीएल यूज़ कर सकते हैं, राइट। केवीएल वहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। So IA, IB and IC are the mesh currents in 1, 2 and 3 respectively. This is quite simplest, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर, बस आपने याद रखना है कि जिस भी ब्रांच में करंट सोर्स होगा वहाँ पर केवीएल आप यूज़ नहीं करोगे, एंड दैट विल फॉर्म व्हाट इज, दैट विल फॉर्म सुपर मेश। यहाँ देखिए इस ब्रांच में करंट IA, सो IA विल बी इक्वल टू I1 एम्पियर, दैट्स इट। I1 आपको मिल गया। IB की बात कीजिए, यहाँ पर आइए, देखिए IB यहाँ पर है, IC यहाँ पर है, ये आपका करंट है। इस मेश में भी आप केवीएल यूज़ नहीं कर सकते, इसमें भी आप केवीएल यूज़ नहीं कर सकते। सो IB और IC यहाँ पर है। अब आप क्या ले सकते हैं, आप अगर IB माइनस IC लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सो IB माइनस IC विल बी इक्वल टू माइनस I3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, राइट। IB माइनस IC इज इक्वल, या तो आप ऐसे लिख लीजिए IC माइनस IB इज इक्वल टू I3, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आपका I3 डोमिनेटिंग करंट होगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, IC माइनस IB एंड दैट विल बी इक्वल टू I3, यानी कि यहाँ से सेम डायरेक्शन में आपका जाएगा IC माइनस IB और इस डायरेक्शन में आपका आएगा IB माइनस IC। फाइन। नाउ आपके पास कितने अननोन हैं, आपके पास 3 अननोन हैं, 1, 2, 3। अब आप इस सर्किट में ढूंढेंगे कि कहाँ ऐसा कौन सा पाथ है जहाँ पर हम केवीएल लिख सकते हैं, ढूंढेंगे यहाँ पर। आप यहाँ से बाहर जाएंगे नहीं मिल सकता, यहाँ जाएंगे नहीं मिल सकता, लेकिन अगर यहाँ से अगर हम यहाँ तक ऐसे जाएंगे तो हमारे को एक केवीएल का पाथ मिल जाएगा और यहाँ पर हम क्लोज लूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय केवीएल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज प्लस माइनस ले लीजिए आप, क्या होगा IB R3, यहाँ से सीधा आप यहाँ जाएंगे, क्या लिखेंगे I3, बिकॉज I3 आपका यहाँ, सॉरी IC आपका यहाँ एंटर कर रहा है, ये आपका इस पॉइंट पर IC एंटर कर रहा है। सो IC R5 एंड प्लस E2, यहाँ से आप सीधे निकल के यहाँ आएंगे, क्या लिखेंगे IB R4, राइट, IB R4
और यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर अब आप इस यहाँ पर आ गए, तो अब यहाँ पर आप या तो आई ए माइनस आई बी लिखिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में लिखना होगा। अगर आप ये इस ब्रांच की करंट को डोमिनेटिंग लेना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, प्लस आई बी माइनस आई ए एंड दिस इज R2 इज इक्वल टू 0। तो आपका 3-4 इक्वेशंस आपके मिल गया। पहला आपको मिल गया एक इक्वेशन ये चाहिए था आपको, दोनों सेम ही इक्वेशन है। दीज टू आर इक्वेशन नंबर 2 ओनली, थर्ड मत कीजिए 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3। तो 3 अननोन 3 इक्वेशंस हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ बिग डील, नॉट अ इशू, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो ये आपका सुपर मेश का कंसेप्ट कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर मेश का कंसेप्ट। फाइन, अभी मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ सुपर मेश का, अब फिर आपको समझाता हूँ मैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट, ये आपकी सर्किट है, आपको ये करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो वी कैन अज्यूम हियर दिस इज I1 एंड दिस इज I2, लेकिन ये ब्रांच, ये करंट सोर्स है, कॉमन है। यहाँ भी आप मेश 1 में भी नहीं यूज कर सकते और मेश 2 में भी आप यूज नहीं कर सकते, दोनों मेश में आप केवीएल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये दोनों में मेश में। आप क्या करेंगे, आप पहले तो आप इसके इक्वेशन लिखेंगे। आप यहाँ देखिए I1 माइनस I2 की अगर हम बात करेंगे, I1 माइनस I2 ऐसे जाएगा और I2 माइनस I1 आपका इस तरीके से जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू I2 माइनस I1 इक्वल टू 3 एम्पियर। दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। अगर I1 माइनस I2 लेना है तो माइनस 3 एम्पियर लिख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन ढूंढना है तो दूसरा इक्वेशन हम आउटर सर्किट पर हम ढूंढ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -5 एंड प्लस दिस इज 2I1। आगे बढ़ेंगे हम 2I2 एंड 5I2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 7I2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2I1। I1 की वैल्यू या I2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आपको I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो I2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे, 7I2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 प्लस I1 is equal to 5 minus 2I1. So 21 plus 7I1 is equal to 5 minus 2I1. So 9I1 is equal to 5 minus 21 and this is minus 16. So I1 is equal to minus 16 by 9 ampere. This will be your current. Fine. So this is the case. अब आप ये माइनस आ गया, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने दीजिए माइनस अगर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा, यानी कि I1 की डायरेक्शन अब ऐसे होगी। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स ऑल। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फाइन, आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेश एनालिसिस के बाद आपको सुपर मेश का भी कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं, आपको नोडल एनालिसिस की तरफ हम लेके चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत अच्छा भी है और बहुत मज़ा भी आएगा आपको सॉल्व करने में। देखिए नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि आपके पास प्लस माइनस 5 वोल्ट है एक, अच्छा इसको यूँ ले लीजिए, दिस इज E1, R1, R2, E2, R4, आइए नोडल एनालिसिस को काउंट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम नोड्स काउंट करते हैं। और नोड्स का मतलब कि कितने नोड्स यहाँ पर मौजूद हैं, है ना, कितने नोड्स हैं। और नोड का मतलब कि कितने करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं, जिस पॉइंट पे भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा एक नोड होगा,
ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से अगर करंट कोई चलता है आई यहाँ पर गया, यहाँ आने के बाद इसको दो पार्ट बंटने को मिल जाएगा, इसका मतलब कि ये हमारा एक नोड होगा, आप इसको एक कह सकते हैं। ये I2 आपका यहाँ तक जाएगा, यहाँ के बाद ये I3 यहाँ जा सकता है, ये करंट तो आ ही रहा है आपके पास, यानी कि यहाँ भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये दूसरा नोड हो गया। और एक आपका कॉमन नोड होता है ये सारा, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, सब कनेक्टिंग वायर है, यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस जो होती है वो 0 ओम होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक नोड आ गया, और इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, इसकी वोल्टेज 0 होगी, और ये हमारा सी नोड हो जाएगा, नोड नंबर सी। ठीक है, तो नोड वो होगा जहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहले हम नोड्स काउंट कर लेंगे। अब बात की जाती है जब हम, और मान लिया कि 4 नोड आ गए, तो 4 में से एक को आप ग्राउंड कर दीजिए, बाकी 2 नोड छोड़ दीजिए, 2 नोड पे आप केसीएल काउंट करेंगे। 5 नोड आ गए, 5 में से एक नोड आप ग्राउंड कर दीजिए, 4 नोड पर आप केसीएल लिखेंगे। 10 नोड आ गए, एक नोड आप ग्राउंड करेंगे और बाकी 9 नोड पर आप केसीएल लिखेंगे। तो ये हमारा नोडल एनालिसिस जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन केसीएल। ये केसीएल गवर्न करता है इसको, और ये केसीएल के थ्रू ही ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हैं आपके 2 नोड, क्योंकि तीसरे नोड को आपने ग्राउंड कर लिया। ठीक है, नोड के बारे में एक और अच्छी बात बताता हूँ, मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। नोड के बारे में आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि नोड जो होता है आपका, आप जैसे आपने मेश में अभी करंट डोमिनेट किया था, जिस मेश में हम आप केवीएल लिखेंगे उसकी करंट को डोमिनेटिंग नेचर मान लेंगे, और उसके बाद आप केवीएल लिखेंगे, यानी कोई करंट पूरे सर्किट पर डोमिनेट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जिस नोड पर आप केसीएल लिखेंगे वो नोड आपका डोमिनेटिंग नेचर होगा, यानी कि उसी नोड पर आप यहाँ पर केसीएल लिखेंगे यहाँ पर, और वो करंट वो आप मानेंगे कि वही नोड है जो पूरे सर्किट में करंट को सप्लाई कर रहा है, वही नोड है जो पूरे सर्किट में करंट को सप्लाई कर रहा है। ये आपको याद रखना है, यानी कि जिस नोड पर भी आप केसीएल लिखने जाएंगे, आप ये मान के चलेंगे कि उस नोड से ही करंट पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक, एक सिंपलेस्ट तरीका होता है ये तरीका होता है, आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज सिंपलेस्ट, क्वाइट सिंपलेस्ट, और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो पोटेंशियल होगी आप उसको पॉजिटिव मानेंगे, यहाँ की जो पोटेंशियल होगी दैट विल बी अज्यूम्ड एज पॉजिटिव, ये आप इसको पॉजिटिव मानेंगे कि हमारा पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल पर है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, और ये आपका ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, हार्डली मैटर्स, बट इसकी वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट होगी बिकॉज ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो आप इसको पॉजिटिव मानेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव हमारा वोल्टेज है। ठीक है, इसकी पोलैरिटी जो होगी पॉजिटिव होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर निगेटिव कहाँ होगी, है ना, निगेटिव कहाँ होगी? सो निगेटिव इसका ग्राउंड आता है, इसकी पॉजिटिव का इसका जो ग्राउंड आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए, इसको हम ऐसे कर देते हैं, जैसे लेट लिखेंगे, लेट VA एंड VB be the node voltages at A and B nodes respectively। ठीक है, मान लिया हमने, अच्छा जी, वेरी गुड। तो V और VB इसके नोड वोल्टेज हो गए। ठीक है, अब आप जब नोड वोल्टेज हो गए तो इसका निगेटिव कहाँ गया? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डॉट लाइन से दिखाता हूँ मैं, ये इसकी पॉजिटिव हो गई, निगेटिव इसकी ग्राउंड में होती है, यही है आपका VA। ठीक है, इसको आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। VB भी क्या हम बात करेंगे तो ये आपका VB आएगा, ये कहाँ कनेक्ट करेंगे, आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये आपका VB आ गया। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि हम KCL कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सा तरीका है कि बाय KCL एट नोड A, sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents, यानी कि इनकमिंग करंट जितनी होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। जैसा कि आपने अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट करके आपने लिख लिया है, आप लिख लो इसको ऐसे ही, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, आपका ये करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग क्या है, I1 प्लस I2 है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, बाय KCL एट नोड B, सेम फंडा,
इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो क्या लिखेंगे I2 इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट इन, तो I2 और इनकमिंग करंट एक आपका करंट सोर्स भी आ रहा है वहां से, और आउटगोइंग करंट आपका I3 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब बात आती है कि हम I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, I की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। I आपको मैं I की वैल्यू लिखना सिखाता हूं मैं। देखिए अगर I की वैल्यू को आपको लिखना है तो इस ब्रांच को आप बाहर निकाल लो। अगर इस ब्रांच को आप बाहर निकालोगे सर्किट से तो प्लस माइनस ये E1 होगा, दिस विल बी R1, और ये टर्मिनल क्या होगा, ये आपका VA होगा, यानी कि ये आपका नोड वोल्टेज, और ये कहाँ जाएगा, E1 भी ग्राउंड में है और ये भी ग्राउंड है, सो प्लस माइनस VA, राइट, और ये आपका ग्राउंड आ गया। करंट कहाँ से जा रहा है, E1 से। तो क्या यहाँ पर आप KVL नहीं लिख सकते, यस KVL लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, माइनस E1 plus IR1 and plus VA is equal to 0. So I is equal to E1 minus VA divided by R1। I मिल गया। I1 की बात करते हैं, I यहाँ पर ये I1 की बात करते हैं। अगर आपको I1 कैलकुलेट करना है तो हम इस ब्रांच को ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दिस इज VA पॉजिटिव और निगेटिव, और ये किससे कनेक्टेड है, R2 से, और R2 के इस टर्मिनल पे कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, ठीक है, और ये कहाँ कनेक्टेड है, ग्राउंड से। लिख लीजिए माइनस VA प्लस I1 R2 इक्वल टू 0, सो I1 इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाई R2। अगर आपको I2 लिखना है, I2 भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप। देखिए I2 के लिए क्या है, ये ब्रांच और ये ब्रांच A और B, यानी कि A टर्मिनल से आप स्टार्ट करेंगे तो प्लस माइनस ये आपका VA हो गया, ये कहाँ गया, ग्राउंड में। उसके बाद आपका ये रजिस्टर क्या आ गया, R3 आ गया, ये कहाँ गया, माइनस प्लस, और ये दिस इज E2। उसके बाद ये EB है, B आपका आ गया, यानी कि ये आपका इस वोल्टेज से कनेक्टेड है, सो दिस इज VB एंड पॉजिटिव निगेटिव ये कनेक्ट करके कहाँ आ गया, ग्राउंड में आ गया। और I2 की डायरेक्शन ये है, तो क्या हम I2 की वैल्यू नहीं लिख सकते, I2 की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस VA एंड प्लस I2 R3 माइनस E2 एंड प्लस VB is equal to 0. So what we can write here? So I2 will be equal to E2 minus VB and plus VA and divided by R3. ये so आपको I2 की वैल्यू मिल गई, I2 की वैल्यू यहाँ पर आपको आसानी से मिल गई। I2 is equal to E2 minus VB plus VA and divided by R3। सिमिलरली आपको I3 मिल जाएगा। I3 कैसे मिलेगा, I3 विल बी इक्वल टू VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई R4। आपको I3 मिल गया, सारी वैल्यूज आपको मिल गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ अब क्वेश्चन आता है, आपने ये लिख लिया वैल्यू, सारी वैल्यू आपको मिल गई। आइए अब मैं आपको तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, बाई KCL एट A। क्या था आपका इक्वेशन, आपका इक्वेशन था इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, राइट। सो I की वैल्यू कितनी थी, आप लिखा था आपने I1 की वैल्यू क्या लिखा था, E1 माइनस VA, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 विल बी इक्वल टू I1 की वैल्यू लिखा था आपने VA डिवाइडेड बाई R2 एंड प्लस I2 की वैल्यू लिखा था आपने VA माइनस VB एंड प्लस E2 एंड डिवाइडेड बाई R3, ये लिखा था आपने। इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपका। देखिए तो VA प्लस E2 दिस इज VA एंड माइनस VB डिवाइडेड बाई R3, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। बाई KCL एट B, इनकमिंग करंट क्या लिया था आपने, इनकमिंग करंट लिया था I2 एंड प्लस IA एंड दिस वाज इक्वल टू I3। सो I2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, लिख दीजिए VA माइनस VB प्लस E2 एंड डिवाइडेड बाई R3। IA तो आपका करंट सोर्स है ही, और I3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, VB डिवाइडेड बाई R4, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको VA एंड VB आपको दोनों मिल जाएगा, VA एंड VB, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, VA और VB को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज। अब आइए,
अब आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, राइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक शॉर्टकट इक्वेशन लिखनी है, देखिए ऑब्वियस है, दो नोड होंगे, V और VB आपने ले लिया, ठीक है, और ये आपका तीसरा नोड ग्राउंड हो गया। जिस नोड पे लिखेंगे आप उसको डोमिनेटिंग मानना है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, बाय KCL एट नोड A। ये अब सारे, अगर यहाँ पे कोई करंट सोर्स नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि यही नोड होगा जो पूरे सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम क्या करेंगे, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, सो VA माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो VA माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। VA माइनस, यहाँ की टर्मिनल कितनी है, 0, सो VA माइनस 0, जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, बाई 2। यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो VA के रिस्पेक्ट में देखना है, सो VA माइनस 3 लिखेंगे, और इसकी भी पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे, माइनस VB एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये भी पॉजिटिव है, इसको अपोज करेगा, ये भी पॉजिटिव, इसको अपोज करेगा, राइट। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, VA माइनस 5 एंड VA एंड प्लस VA माइनस VB इज इक्वल टू 3, 2 कैंसिल्स, क्या मिल जाएंगे आपको, 3VA माइनस VB इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आइए बाय KCL एट नोड 2 चले, बाय KCL एट नोड B, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग। अब ये फंडा छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है, ये डोमिनेटिंग है और यही पूरे सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक्सेप्ट कि यहाँ पर कोई करंट सोर्स तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक आपका करंट सोर्स आ रहा है, तो इनकमिंग करंट क्या होगी, तो इनकमिंग करंट यहाँ पर 2 होगी। यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या थी, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे तीनों आउटगोइंग करंट थे, और ये क्या था, ये इनकमिंग करंट था, तो ये 0 कर दिया। यहाँ पे इनकमिंग करंट कितनी है, 2 लिख दिया, बाकी इन दोनों में आउटगोइंग करंट होगी। अब देखिए कैसे लिखेंगे, VB माइनस 0/2 इस ब्रांच के लिए, और इसके लिए देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये आपका ये पॉजिटिव है, इसको अपोज करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, VB एंड प्लस 3 माइनस VA एंड बाई 2, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू VB एंड प्लस VB प्लस 3 माइनस VA, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 2VB एंड माइनस VA, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो VA की अगर वैल्यू हम ले लें यहाँ से, तो VA इज इक्वल टू 2VB माइनस 1, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम सेकेंड से, अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें VA की, तो हम क्या लिखेंगे, 2VB माइनस 1 एंड माइनस VB इज इक्वल टू 8, तो क्या लिखेंगे, 6VB माइनस 3 एंड माइनस VB इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज दैट 5VB इज इक्वल टू 11, सो VB इज इक्वल टू 11/5 वोल्ट, ये आ गया। और VB की जब वैल्यू इतनी आ गई तो ये कितना होगा, 11 22 माइनस 17/5, दिस विल बी 17/5, राइट। 11 2 22, 22/5 माइनस 22 माइनस 5 17/5, सो दिस इज VA एंड VB। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लिया जाए कि आपको इस ब्रांच की करंट ये कैलकुलेट करनी है कि ये करंट कितना है, तो आप लिख सकते हैं, सो I विल बी इक्वल टू क्या होगा, I विल बी, अब ये करंट ऐसे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस VA एंड डिवाइडेड बाई 2, सो 5 और VA की वैल्यू कितनी है, 17.5, 17/5/2 आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बेहतर है इसको यूज करना, बिकॉज इसको यूज करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। दिस इज वेरी गुड मेथड, फाइन। नाउ यहां पर भी एक
कंसेप्ट आता है सुपर नोड का। मैं एक ही इक्वेशन में आपको सुपर नोड के बारे में बता देता हूँ। मैं सुपर नोड का मतलब कि कोई भी ऐसा सुपर नोड, कोई भी ऐसा तो यहाँ पर आपको सुपर नोड मिलेगा। जैसे किसी भी सर्किट में करंट सोर्स मौजूद था, है ना, तो आपने कहा था सुपर मेश, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इस वोल्टेज सोर्स के साथ कोई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो आपका एक सुपर नोड बन जाएगा। दिस इज सुपर नोड, सुपर नोड 1, सुपर नोड 1। और एक आपका यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सुपर नोड नंबर 2। ये आपका सुपर नोड 2, यानी कि अगर बैटरी है उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, दैट कैन मेक अ सुपर नोड, ठीक है। ये आपको सुपर नोड बन जाएगा। सो दिस इज सुपर नोड एंड दिस इज सुपर नोड, ये आपको बन जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक नोड आपका ये होगा VA, यहाँ पर दूसरा नोड होगा VB, और ये क्या होगा आपका VC, और ये आपका चौथा नोड होगा VD एंड दैट विल बी ग्राउंडेड। अगर आपका कोई भी नोड ग्राउंड से यहाँ पर ग्राउंड के बीच में मौजूद अगर है, तो यहाँ पर आपको KCL लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको KCL लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इस ग्राउंड के पास है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप KVL लिखेंगे, और बाय KVL एट नोड C, ठीक है। VC इसका नोड वोल्टेज है, VA VB VC आपके नोड वोल्टेज है। आप लिख सकते हैं VA VB VC एंड VD आर द नोड वोल्टेजेस एट ABCD नोड्स रेस्पेक्टिवली। ये आपके नोड वोल्टेज है, राइट। तो ये आपके पास इतना आ गया, ठीक है। ये आपके नोड वोल्टेज आ गए। अब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको नहीं लिखना, तो सिर्फ KVL लिखना है। तो अगर हम यहाँ पर KVL लिखेंगे तो इसका निगेटिव कहाँ है, ग्राउंड में है। ऑब्वियस मैंने अभी बताया था इसका निगेटिव कहाँ मिलेगा आपको, ग्राउंड में मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये आपका ये प्लस माइनस VC है, तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस VC एंड माइनस E3 इज इक्वल टू 0। सो VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो E3 के बराबर आ जाएगी, माइनस E3 के बराबर आ जाएगी। सो VC विल बी इक्वल टू माइनस E3। यहाँ पर आपको नोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप फ्री हो गए यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर है, यानी कि ग्राउंड के अलावा अगर कहीं मौजूद है, तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन में आप दोनों नोड को लिख लेंगे, एक ही इक्वेशन में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय KCL एट A एंड B नोड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक ही नोड में आप यहाँ पे पहले लिखेंगे इनकमिंग करंट तो कुछ भी नहीं है आपका, 0। नोड C पर इनकमिंग करंट देखिए, B पर और A पर देखिए, A पर इनकमिंग करंट 0, B पे इनकमिंग करंट 0। यहाँ से करंट से निकल रहा है और यहाँ से भी करंट निकल रहा है, निकाल दीजिए इसको। क्या लिखेंगे, VA माइनस E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस VA बाई ये R2 ले लीजिए, VA बाई R2। इसका हो गया, इसका आउटगोइंग आ गया। अब इसका आउटगोइंग ले लीजिए, प्लस VB माइनस VC एंड डिवाइडेड बाई R4 प्लस VB माइनस 0 बाई R3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल गया, यहाँ से आपको यहाँ तक। यहाँ पर भी हम लेकिन KVL लिखेंगे, हमारे को 3 अननोन है, 3 इक्वेशन लिखने हैं। यहाँ पर भी हम KVL लिखेंगे और उसी तरीके से लिखेंगे कि यहाँ इसको मानेंगे कि ये हमारा कहाँ है, ग्राउंड में है, और ये कहाँ हमारा, ये भी हमारा ग्राउंड में है, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंड की बात करें तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये क्या आएगा, प्लस माइनस VA, और ये आएगा प्लस माइनस E2, और ये आएगा आपका प्लस माइनस VB। क्या लिखेंगे, माइनस VA प्लस E2 एंड प्लस VB इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3।
इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम VV और VC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि सॉल्विंग ऑल थ्री इक्वेशन 1 to 3 वी कैन गेट VA, VB एंड VC। सिंपल है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, अब अगला हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।